ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਸ਼ੌਲਕ ਸ਼ਰਮਾ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 335 ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਸਕੂਲ ਆਖਿਰਕਾਰ ਖੁੱਲੇ। ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਕੂਲ। ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਰਾਖਵੇਂ ਵਾਰਡਾਂ ਲਈ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਡਰਾਅ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਰ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਕੁੱਲ 25 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਕੇਸ ਮੌਲੀ ਜਾਗਰਾਂ ਤੋਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਡੈਲ ਤੋਂ 4 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਮਨੀਮਾਜਰਾ, ਫੈਦਾ ਤੇ ਧਨਾਸ ਵਿੱਚ 2-2 ਕੇਸ ਤੇ ਰਾਮ ਦਰਬਾਰ, ਕਜਹੇੜੀ, ਸੈਕਟਰ 28, ਸੈਕਟਰ 45 ਤੇ ਸੈਕਟਰ 46 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 335 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲੇ 419 ਦਾ ਆંકੜਾ ਛੂ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੀਜੀਆਈ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਲਾਰਵਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ 438 ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। 170 ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ 7764 ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ 326 ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 94 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 132 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦਵਾਈ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫੌਗਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਧਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਕੂਲ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਸੀ। ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਕੂਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 19 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ स्टूडेंट्स भी स्कूल पहुंचने लगे ने। हम घर में बैठे रहते थे, काम भेजते थे मैम, फ़ोन पे काम करना, फ़ोन में हमेशा ध्यान रखना, इसीलिए बोर होते थे हम। मैम हमें समझाती है, वहाँ पे हमें कोई समझाने वाला भी नहीं था। फ़ोन पे खाली कॉपी में करो तो अच्छा भी नहीं लगता था। यहाँ पे मैम समझाती भी है। और कोविड का पूरा ध्यान करवाते हैं मैम? यस सर। किस तरह का ध्यान रखवाते हैं? मैम कहते हैं हमेशा मास्क रखो और जब भी किसी चीज़ को छुओ तो हैंड सैनिटाइज़र करो, हैंड सैनिटाइज़र करके खाना खाओ। घर बैठे बैठे तो बोर हो जाते थे, स्कूल में अच्छा लगता था। मैम जैसे कोविड के बचने के उपाय, जैसे हमें एक एक करके बिठाते हैं मैम और मास्क लगाने को कहते हैं हर बार। और जब भी हम किसी दूसरे की चीज़ लेते हैं तब मैम हमें कहते हैं कि हमें सैनिटाइज़र यूज़ करना चाहिए। सर मुश्किल तो इतना मुश्किल नहीं है, पर हम तो जितना बोर हो चुके थे पिछले 1.5 साल से, तो हम तो वेट कर रहे थे कि हमारे बच्चे आएँ और हमारा स्कूल फिर से हरा भरा हो जाए। मतलब बिल्कुल खाली सा लग रहा था, ये हमारा भी मन नहीं लगता था। यहाँ पर खाली बिल्कुल जंगल सा फील होता था, पर जब से कल से बच्चे आए तो एक रौनक आ गई घर में ना। जैसे हमारे बच्चे चले जाएँ तो हमें लगता है घर खाली, वैसे स्कूल लग रहा था, पर कल से फिर से हमारा स्कूल हरा भरा हो गया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। पर कोरोना के लिए तो बस जैसे हम अपने बच्चों को घर पर समझाते हैं वैसे यहाँ पर समझाया होता है। एक तो बच्चों को सबसे ज़्यादा है कि अलग अलग बैठे, एक सर शेयरिंग अवॉइड करवानी है, फिर भी कुछ हद तक बच्चों को शेयरिंग करवानी पड़ जाती है कई बार बुक्स वगैरह के लिए। तो बच्चों को सैनिटाइज़र के लिए बोला है कि जैसे ही वो किसी की कोई चीज़ को टच करे तो सैनिटाइज ज़रूर करें, और खाना खाने से पहले हैंड वॉश के लिए ज़रूरी है, मास्क अपना पहन कर रखें। खेलें तो एटलीस्ट अलग अलग, यहाँ पर हम इंडिविजुअल खिलाते हैं बच्चों को, अलग अलग गेम्स करवाते हैं ताकि बच्चे ग्रुपिज्म में ना हो। अभी हमारे यहाँ एंट्री पर ही बैठे होते हैं, तो प्रॉपर बच्चों का पहले मास्क के बिना एंट्री नहीं देते हम लोग। और इन केस अगर कोई 1% बच्चा मास्क पहनकर भी नहीं आता तो हम उसको मास्क भी प्रोवाइड कराते हैं, एंड प्लस उनके हैंड सैनिटाइज कराते हैं। देन क्लासरूम्स में जब जाते हैं तो वहाँ क्लास टीचर्स भी प्रॉपर फर्स्ट 0 पीरियड में यही चेकिंग करते हैं कि बच्चों के सैनिटाइज़र्स उनके पास हैं, और ब्रेक में भी वो प्रॉपर सैनिटाइज़ करके अपना लंच ले रहे हैं कि नहीं। और हमारे हर फ्लोर्स पर सैनिटाइज़र्स भी लगे हुए हैं।
ਉਧਰ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਡਰਾਅ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁੱਲ 12 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਗੀਆਂ। ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬੇਗੋਲ ਵੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਚੁਣਾਵ ਆਯੁਕਤ ਐਸ.ਕੇ. ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਰਕਸ਼ਿਤ ਵਾਰਡਾਂ ਲਈ ਡਰਾਅ ਕੱਢਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਵਾਰਡਾਂ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੀਆਂ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 7, 16, 19, 24, 26, 28 ਤੇ 31 ਆਰਕਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 16 ਤੇ 28 ਤੇ 19 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਆਰਕਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਨਰਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1, 4, 5, 6, 9, 10, 18, 22, 23 ਆਰਕਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਰਾਜ ਚੁਣਾਵ ਆਯੁਕਤ ਐਸ.ਕੇ. श्रीवास्तव ने मीडिया ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। आज पॉलिटिकल पार्टीज़ की मीटिंग बुलाई थी जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ लोग मौजूद थे, तो उनके सामने हम लोग जो रिजर्व सीट 1/3 है, 35 वार्ड टोटल है इस बार, पिछले बार 26 थे, तो उसमें 33 में से हम लोगों ने 1/3 सीट में 12 सीट हम लोगों ने वीमेंस के लिए रखी है और उसमें 7 सीट हैं जो सुनकास्ट लिए हैं, 7 में 3 सीट रिज़र्व हैं महिलाओं के लिए। तो इसका 2 काम करना था। एक तो पहले निकालना था कि हम कितनी सीट रख रहे हैं 3 महिलाओं के लिए, फिर 12 सीट रखनी थी हमको वीमेन के लिए। तो दोनों हम लोगों ने ये प्रोसेस किया है और 7 सीट हैं शेड्यूल कास्ट की। 18.85% करीब है रिजर्वेशन उनका है, पॉपुलेशन है, उस हिसाब से रखी गई जो पिछले सेंसस में थी। ਉੱਥੇ ਡਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਸਪਾ ਡਰਾਅ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਅੱਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ सुन लो। ऐसा जी कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया जो इलेक्शन कमीशन ने पूर्ण की है और जितने भी जो 18.86 एससी पॉपुलेशन के हिसाब से 6.69% जो है वो वार्ड्स बनते थे, वो नियर बाय फिगर जो है 7 की, उसमें 3 एससी महिलाओं के लिए और 4 एससी जेंट्स के लिए रिजर्व हुए हैं। और इसके अलावा 35 वार्डों में 1/3 के हिसाब से जो है वो 12 वार्ड महिलाओं के थे, जिसमें 3 एससी महिलाएं हैं और 9 जो हैं वो जनरल कैटेगरी की महिलाओं के लिए वार्ड आज आरक्षित हुए हैं। ऐसा है जी कि सारी प्रक्रिया खुले रूप से सबके सामने हुई और सारी विपक्षी पार्टियों ने सारी पर्चियाँ चेक की। एससी वार्ड किस प्रकार से रिजर्व हुए हैं उसका क्राइटेरिया बताया गया कि 2011 की पॉपुलेशन को बेस माना गया है, उसमें जो एससी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से, क्योंकि 2021 की जनगणना सेंसस अभी नहीं है, वो डाटा उपलब्ध नहीं है और इनके सामने बड़ी पारदर्शिता के साथ सारा काम हुआ है। देखिए, जो महिलाओं के लिए रक्षित हैं उसमें वार्ड नंबर 1, 4, 5, 6, 9, 10, 18, 22, 23 ये 9 वार्ड हैं और एससी के लिए जो वार्ड हैं वो आए हैं उसमें हैं जी 16 नंबर, 26 नंबर, 19 नंबर, 31 नंबर, 28 नंबर, 7 नंबर और 24 नंबर, ये उनके लिए रिजर्व आए। देखिए, इन्होंने जो कानून के तहत जो हमें नोटिफिकेशन दिखाई है उसके तहत इन्होंने 2011 की सेंसस ली है। उस वक्त जिस वार्ड में जितनी पॉपुलेशन थी उसी हिसाब से इन्होंने उनका क्राइटेरिया तय किया है और बाय एंड लार्ज जब एक्ट में है तो उसके एक्ट के बाहर जाके ना हम कुछ कर सकते हैं ना वो कुछ कर सकते हैं। उस हिसाब से तो अगर देखा जाए तो ठीक है। अगर प्रेजेंट वाली लेते तो शायद थोड़ा सा वार्डों में बदलाव आ सकते हैं। देखिए, संतुष्ट तो अभी आगे इसका एनालिसिस करेंगे हम। वैसे तो हम 35 के 35 वार्डों के लिए तैयार हैं इलेक्शन के लिए। संतुष्ट और असंतुष्ट का फायदा नहीं कोई फ़र्क पड़ता। सवाल सिर्फ ये है कि कोई भी चुनाव हो उसमें आम लोगों में ये बात जानी चाहिए कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से होने जा रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, बाय एंड लार्ज हम प्रेजेंट थे। अब इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से पूरी पारदर्शिता रखी है और मेरे ख्याल से ये ड्रॉ ठीक निकले। बहुत अच्छा रहा है। हम इस बार जो भी प्रतिक्रिया चली उससे हम संतुष्ट हैं और बड़ा क्लीन, बहुत अच्छी तरह जो यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर आए हुए थे उनकी रेट में बहुत अच्छा हुआ है। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਮਖਿਆਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲੋ। ਲਗਭਗ ਸਾਡਾ ਬੀਐਸਪੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ 35 ਸੀਟਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਨ ਦਾ ਤੈਅ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣਾਂ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਡਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਯੋਜਕ ਪ੍ਰੇਮ ਗਰਗ ਥੋੜੇ ਨਾਖੁਸ਼ ਦਿਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡਰਾਅ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ
ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। नहीं ड्रॉ तो ठीक है, लेकिन ये 2011 के जो बेस पे रिजर्वेशन किया है, क्योंकि कॉलोनी जी इधर से उधर शिफ्ट हो गई हैं, वो थोड़ा सा गलत है। इसका ड्रॉ से कोई लेना देना है तो बताओ। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, जहाँ पे 80 वार्ड कई जगह घोषित है, जो है कॉलोनियाँ शिफ्ट हो गई हैं, तो वहाँ पे एक्चुअल में पॉपुलेशन जो 2011 के बेस पे थी, आज वो पॉपुलेशन सेम नहीं है, तो इसलिए इसको रिकन्सिडर करना चाहिए था। देखते हैं अब जो पार्टी हाईकमांड कहेगी। हाँ बिल्कुल लड़ेगी, 35 से 35 वार्ड्स पे लड़ेगी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਜੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਡਰੋ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਚਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਭਗਵਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਧੀਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਜਾਣ ਸਕਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ है। हमें जितना प्रेफर्ड हो घर पे बनाना चाहिए। कोई भी चीज़ बुरी नहीं है खाने के लिए, चाहे वो मीठा हो, नमक हो, तेल हो, लेकिन अगर वो सही क्वांटिटी में खाया जाए सिर्फ तभी उसका फ़ायदा है। अगर वो सही क्वांटिटी में नहीं खाया जाएगा तो उसके नुकसान ही नुकसान है। इसलिए मेरा ये मानना है कि जितना भी घर पे बनाया हो उतना ही बेटर है। हम जितना भी प्रोसेस्ड फूड है, जो आप कह रहे हैं कि आजकल प्रोसेस्ड फूड का बहुत ज़्यादा, ये हमें मैक्सिमम अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें एक तो एक्सेस अमाउंट में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक रहते हैं, और सेकेंडली उसमें एक्सेस में ऑयल रहता है या नमक रहता है। ये जो जितने भी फूड्स हैं ये एक कॉमन पीपल के लिए बनाए जाते हैं, मतलब एक कॉमन स्वाद को लेके या पैलेटेबिलिटी को लेके बनाए जाते हैं, ना कि पर्सनल रिक्वायरमेंट्स को लेके। हर पर्सन की खाने की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है और हमें वो खाना उसी के अकॉर्डिंग ही खाना और बनाना चाहिए। देखिए, स्वास्थ्य विभाग की ड्यूटी इन्फोर्समेंट करने की तो है ही, लेकिन समाज की, जनता की, पब्लिक की खुद की अवेयर होना वो भी बहुत ज़रूरी है, और उनको हमारे मैसेज को लोगों तक पहुंचाना वो मीडिया की जिम्मेदारी है और ड्यूटी है, और निभाता भी है जिम्मेदारी। देखिए हम जितना मर्जी कार्य करते रहें, लेकिन जब तक हमारा मीडिया में नहीं पब्लिश होगा, लोगों को पता नहीं चलेगा हमने विभाग ने क्या किया, तब तक लोगों को नहीं पता चलेगा कि क्या हो रहा है, क्या चीज़ बिक रही है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना। और दूसरी मैं तो ये कहूँगा, ख़रीदार खबरदार, सावधान होकर ख़रीदो, अपनी आंखें खोल के देखो, पूरी नॉलेज से ख़रीदो, पूरा उसका रेट, डेट, वेट, उस पर न्यूट्रिशन वैल्यू क्या लिखी हुई है, उसका एड्रेस क्या लिखा हुआ है, उसका बिल लो। आप जल्दबाजी में ख़रीदारी मत करो, आराम से ख़रीदारी करो, देखो कि ठीक है। अगर फिज़िकली उसको टेस्ट कर सकते हो, फिज़िकली उसका सुगंध लेके कर सकते हो, आप हाथों से उसको मैश करके देख सकते हो, और वो अगर वैसे फिज़िकली लगता है फंगस है उसमें, उसको आप खुद भी, हमारा जो फूड सेफ्टी एक्ट है, जो हमारा जो एक ग्राहक है, खुद भी सैंपल लेके अपना एनालिसिस के लिए भेज सकता है और शिकायत भी कर सकता है ग्रीवेंसेस सेल पे, FSSAI के। सर जैसे ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੂੰਦਾਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੰਡ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਜੋ ਪਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨਾ ਅਖੀਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੰਡ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 24 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 17 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਫਿਰ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।